subscribe bars and don't forget to hit the bell icon to get all important notifications. Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you're all fine. So today is our fourth lecture and the topic of fourth lecture is how to create, edit, compile and execute a C program and errors in C++, keywords, identifiers, variables and constant. So let's get started. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So friends, today is our fourth lecture of C++ programming and the topic is how to create, edit, compile and execute a C program, errors in C++, keywords and identifiers, C++ variables and constants. So first, how to edit, compile and execute a C++ program. Creating a C program. First of all, you can write, edit and save a program in any text editor program. But Dev C++ provides a complete ID for this purpose. You can easily write, edit and save C program in the text editor. So friends, you can see there, this is the Dev and this is the text editor in which we can write the main coding. This is provided by the Dev C++. So friends, Dev C++ जो है ये हमें complete एक text editor भी provide करता है. उसके अंदर ही हम text वगैरह को write करते हैं, उसे compile, edit, save और उसे execute, हर चीज़ हम Dev के अंदर कर देते हैं. So Dev एक complete package है जिसके अंदर हम हर एक चीज़ इसी के अंदर ही कर सकते हैं. So इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ कि आप Dev पर programming करें. तो नेक्स्ट चलते हैं. Like this is the interface. You can see edit a C program. You can also make changes during writing new program as well as in the existing C program. Therefore, the process of writing, changing and revising the source code is called editing program. Like this. फ्रेंड्स, अगर हम इसमें अगर कोई और चीज़ एडिट करना चाहें, जैसा कि ये मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ड की बार्स BARZS. सो दिस इज कॉल्ड एडिटिंग. Saving a C++ program. After writing or editing the source program, you should save it on the disk as text file which is with an extension .cpp. This process is called saving the program. Like this. Errors in C++. Friend, error is an illegal operation performed by the user which results in abnormal working of the program. Programming errors often remain undetected until the program is compiled or executed. जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाएगा. जैसे कि एक एक्यूरेट चीज़ वर्किंग करती है, ऐसे इनकम्प्लीट चीज़ कोई भी वर्किंग नहीं करती. तो यही एक एरर है. नेक्स्ट इसकी ये टाइप्स हैं: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर. सिंटैक्स एरर. Errors that occur when you violate the rules of writing C++ syntax are known as syntax error. This compiler error indicates something that must be fixed before the code can be compiled. All these errors are detected by compiler and thus are known as compile time errors. Most frequent syntax errors are missing parentheses, printing the value of variable without declaring, missing terminating like this. Syntax error. फ्रेंड्स, C++ में उसे इसकी कोडिंग के हर एक मेथड का हमें तरीका बताया गया है. अगर हम उस तरीके के मुताबिक कोई भी चीज़ नहीं लिखते तो वो उसका सिंटैक्स एरर कहलाता है. जैसा कि मैं यहाँ से अब टर्मिनेटर रिमूव कर रहा हूँ और इसे मैं कंपाइल कर रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, ये आप देखते हैं कि इसने एरर दे दिया, इसे कंपाइल नहीं किया. ये देख सकते हैं आप.
इन द फंक्शन इंट मेन फंक्शन टर्मिनेटर इज मिसिंग। ये चेक कर सकते हैं आप। अभी हम इसके ऊपर टर्मिनेटर लगाते हैं, इसे दोबारा से कंपाइल करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप हेलो वर्ल्ड बार्स, ये कंप्लीट प्रिंट हो गया है। इसे बाकी इसकी नेक्स्ट जो एडिटिंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल ये जो एरर है, इस टाइप के एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर on compilation and execution of a program, desired output is not obtained when certain input values are given. These types of error which provides incorrect output but appears to be error free are called logical error. These are one of the most common error done by the beginners of programming. For example, using wrong condition in the program, such as writing a less than 5 instead of a greater than 5, and using wrong formula in the program, such as writing average is equal to total steric 5 instead of average is equal to total divided by 5. Logical error is most difficult type of error. फ्रेंड्स, ये लॉजिकल एरर होता है, ये कंपाइलर से डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि ये प्रोग्राम को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उन पर ये अफेक्ट करता है। उनके रिजल्ट्स रॉन्ग आते हैं। जैसा कि ये आपको मैंने अभी एवरेज का फार्मूला बताया, एवरेज के फार्मूले को हम गलत लिख लें अगर, और जैसा कि ग्रेटर और लेस देन, इसमें अगर कोई कंडीशन को हम गलत लिख दें तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। और ये कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट नहीं करता, ये हमें खुद ही होल प्रोग्राम को रीड करना पड़ता है और फिर हम उसे डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज द वेरी डिफिकल्ट एरर इन ऑल थ्री एरर्स। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम error which occur during program execution after successful compilation are called runtime error. One of the most common runtime error is deviation by zero, also known as deviation error. This type of error are hard to find as the compiler doesn't point to the line at which the error occur. So friends, ये जो run time error होता है ये during execution, on the time of execution पर ये occur होता है। जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो। सो इसका जवाब इन्फिनिटी होता है, जो कि कंप्यूटर हमें इन्फिनिटी तो नहीं दे सकता, इस वजह से वो हमें रन टाइम एरर देता है। ऐसे के जो एरर होता है इसे हम फाइंड जल्दी कर लेते हैं, बट ये लॉजिकल एरर से आसान होता है, लेकिन ये भी एक डिफ़िकल्ट एरर है। इसे भी हमें तलाश करने के लिए पूरे प्रोग्राम को रीड करना पड़ता है लाइन बाय लाइन, फिर उसे चेक करना पड़ता है, फिर उसकी कैलकुलेशंस, फार्मूलाज, सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है, फिर हम इस एरर को हम ख़त्म कर पाते हैं। कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। सो फ्रेंड्स, जो कीवर्ड होते हैं, सी की जो लाइब्रेरी फाइल होती है उसके अंदर इन सब के मीनिंग लिखे होते हैं, इस वजह से इन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं। जो कीवर्ड होता है हम इसको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करते, यानी कि हम इसे किसी भी अगर नेम वगैरह है, किसी अगर वेरिएबल लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, अगर उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम उसकी जगह पर कीवर्ड कोई भी नहीं लिख सकते। जो कीवर्ड्स होते हैं ये तमाम के तमाम स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये सब कीवर्ड्स हैं, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, break, else, long, switch and so on. This is all the type of keywords. इन सब के हर एक कीवर्ड का जो है मीनिंग है वो एक प्री डिफाइंड मीनिंग है। कोई भी जो कीवर्ड्स है ये सेम नहीं हो सकते, हर एक का अपना अपना मायने है और वो सी की लाइब्रेरीज में सेव है। उसके नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। Identifier refer to name given to entities such as variable, functions, structures, etc. Identifier must be unique. They are created to give a unique name to an entity to identify it during the execution of the program. For example, int money, double balance. Here money and balance are example of identifier. ये जो int है और ये जो है double, ये एज ए कीवर्ड्स भी वर्क कर रहे हैं और ये डाटा टाइप्स भी हैं, ये डाटा टाइप भी वर्क कर रहे हैं। और ये जो मनी है ये एक नाम है, जैसा कि इसे आइडेंटिफायर का नेम, ये एक यूनिक नेम है, ये पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को हम काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन इस नेम को हम पूरे प्रोग्राम में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये जो बैलेंस है इसे भी हम ये सेम एज वर्क करेगा। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ कंटेनर storage area to hold data. To indicate the storage area, each variable should be given a unique name. Variable names are just the symbolic representation of a memory location. For example, int score is equal to 95. Here, score is the variable. So friends, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जैसा कि एक रूम, अगर एक रूम है तो उसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करते हैं, उसके अंदर हम सब चीज़ें इकट्ठी रखते हैं, ऐसा ही एज अ वेरिएबल वर्क करता है। जैसे कि एक स्कोर है, ये आप देख सकते हैं स्कोर, ये स्कोर एक एज अ रूम वर्क कर रहा है और इसके अंदर ये जो वैल्यू है 95 ये इसके अंदर स्टोर है, तो ये एक वेरिएबल है और स्कोर इज़ अ वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ एक नेम एक ही वेरिएबल को दे सकते हैं और जो वेरिएबल की वैल्यू हम इसे प्रोग्राम में काफ़ी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं और उसी के नेम से हम उसे एक्सेस करेंगे और वो वैल्यू हमारे पास उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन। The process of giving a memory location to a variable is called variable declaration. Syntax: int, age, float, average. In C programming, variables which are to be used later in different parts of the function have to be declared. Variable declaration tells the compiler two things: the name of the variable, the type of the data that the variable will hold. Variable declaration एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसे एक यूनिक नाम से डिक्लेयर करते हैं और उसे एक डाटा टाइप एलोकेट करते हैं। डाटा टाइप का मकसद ये है कि एक चीज़ है जैसा कि एज के अंदर हम इंटीजर डाटा टाइप इंटर कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम डेसिमल नहीं, एज किसी की भी होगी तो वो डेसिमल में नहीं होगी, वो इंटीजर में होगी, यानी कि एक्यूरेट वर्ड्स होंगे 18, 90, 20, 21। दिस इज कॉल्ड इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट 20.2, 20.5 एंड 19.5, सो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिर्फ ये दो चीज़ें हमें बतानी होती हैं कि वेरिएबल का एक यूनिक नेम और उसकी डाटा टाइप, जो कि उसमें के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करनी है वो किस टाइप की वैल्यू है, वो करैक्टर डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है या फ्लोट डाटा टाइप है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सिंटैक्स: डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इंट एज इज इक्वल टू 19। तो फ्रेंड, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो एक वेरिएबल यूनिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हम उसे एक वैल्यू एलोकेट करते हैं। दिस इज ऑल द प्रोसेस कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 19। इंट इसमें ये हमें शो कर रहा है कि ये इसमें डाटा जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है। एज ये वेरिएबल का नेम है जो कि यूनिक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं हम, और ये जो 19 है ये वैल्यू है जो एज को असाइन की जा रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा वैल्यू असाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वेरिएबल को नेम देने के कुछ रूल्स हैं, सो वो डिस्कस करते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स, बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, digits and underscore. The first letter of variable should be either a letter or an underscore. There is no rule on how long a variable name identifier can be. However, you may run into problem in some compiler if the variable name is longer than 31. जो वेरिएबल होता है हम उसे सिर्फ लेटर्स दे सकते हैं, या अपर केस या लोअर केस। अगर डिजिट्स भी हम उसमें ऐड करते हैं तो फर्स्ट पहले अंडरस्कोर ऐड करते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स, फिर उसके बाद डिजिट्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट पर डिजिट दिए हों उसके बाद अल्फ़ाबेट्स या फिर अंडरस्कोर। फर्स्ट या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ कंपाइलर ऐसे हैं कि उसमें वेरिएबल का जो नेम है वो अगर 31 कैरेक्टर्स से अबव हो तो वो 31 कैरेक्टर्स को कंपाइल कर लेता है और जो बाकी होते हैं उसे वो स्किप कर देता है। ज़्यादातर वैसे जो भी वेरिएबल का नेम होता है वो 31 कैरेक्टर से लेस ही होता है। कभी कभार ही होता है जो कि 31 से अबव जाता है, लेकिन वो खुद ही जो प्रोग्रामर होता है वो उसे एक्यूरेट कर लेता है और 31 से लेस ही रखता है। कॉन्स्टेंट्स आर डाटा यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यूज। दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन द कोड। फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 3.14 एंड 10 एक्सेट्रा। दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। जैसा कि अगर एक चीज़ फिक्स्ड कर दी जाए कि एक चीज़ है, एक बॉल पॉइंट है, अगर उसकी कीमत 5 रुपये है तो वो 5 रुपये में ही सेल की जाएगी, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और अगर एक जैसा कि एक लोकल दुकान पर हम जाएं
तो वहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ खरीदें तो वो कहेगा 10 के, हम कहेंगे नहीं हमने इसे 5 में लेना है, तो ये वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अगर हम किसी ब्रांड की दुकान पर जाएंगे तो वो हम कहेंगे ये ब्रांड है, ये इतने की इसकी फिक्स्ड प्राइस है, तो आपको इतने ही पे करने पड़ेंगे, वो कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स भी हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जैसा कि अगर पाई की वैल्यू है वो 3.14 है तो वो कंपाइलर नहीं जानता कि इसकी क्या वैल्यू, तो हम फिर वहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू को एलोकेट करते हैं। तो इसी तरह ये हमारी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की जाती है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।